दूसरा जो हमने कल किया था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स. सो फर्स्ट हमने किया था HCl plus ZnCl2. The reaction that was known as what? It was known as the Groves process, right? In which ZnCl2 that behaved as an acid to extract the base which is OH negative. ठीक है. फिर PCl5 के साथ, PCl3 के साथ, SOCl2 के साथ, और इसमें हमने बोला था कि जो बेस्ट मेथड है that is with SOCl2. जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखते हैं in all these reagents, the order of the reaction is 2 degree is greater than 3 degree is greater than 2 degree is greater than 1 degree, क्योंकि ये सारी reactions में formation of a carbocation that is going to take place, और जो 3 degree carbocation है वो सबसे ज़्यादा stable है, इसलिए this is the trend. ठीक है. जब आप फर्स्ट वाला करते हैं HCl और ZnCl2 की जो हमने रिएक्शन करी है, जब उसमें हम हेलोजन एसिड्स का ट्रेंड देखते हैं तो हमने कहा था कि HI सबसे इजीली रिएक्ट करता है, फिर उसके बाद HBr, फिर उसके बाद HCl and HL. Right? This is what we had done yesterday. Then second method of preparation was from hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स के साथ जब हम प्रिपेयर करते हैं, the first reaction which we did was by substitution reaction. The mechanism of this reaction is a free radical mechanism. ठीक है. और हमने किया था इसमें एक चेन रिएक्शन होती है in which a mixture of products are formed. So ये method is not a very good method to prepare. Detailed method हमने कल वाले लेक्चर में कर लिया हुआ है. ठीक है. Second इसमें by addition of halogen acids around a double bond, right? So ये वाला जो preparation था, that was the preparation from alkenes. This also follows two different mechanisms. एक जो था that was known as Markovnikov's rule, where the negative part of the halogen acid attacks at the carbon atom with lesser number of hydrogens. An example which we can take is अगर unsymmetrical alkene ले रहे हैं plus HBr, this is going to give us 2-bromo propane. This is going to give us 2-bromo propane. ठीक है. और अगर यही रिएक्शन हम एक ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करें तो एंटी मर्कोनिकोव्स रूल फॉलो होता है. Anti-Markovnikov's rule, which says that the negative part will attack at the carbon atom with greater number of hydrogens. So, if this reaction takes place in presence of a peroxide, so हमारे पास क्या आ जाएगा फिर CH3 2-bromo propane. और हमने ये भी किया था कि ये जो एंटी मर्कोनिकोव्स रूल है, this is only followed by HBr, right? The third we did was by addition of halogens. Addition of halogens में vicinal diacrines are formed. Like if we are treating an alkene with bromine in presence of carbon tetrachloride, formation of vicinal diacrines that is going to take place. ठीक है. और इसमें हमने बोला था कि फ्लोरिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है. फर्स्ट वाली रिएक्शन में तो फ्लोरिनेशन इसमें नहीं होती है. ठीक है. The third which we are going to do today
is by halogen exchange. By halogen exchange. हेलोजन एक्सचेंज का क्या मतलब हुआ कि हम एक हेलोजन को दूसरे हेलोजन के साथ एक्सचेंज करेंगे एंड दिस रिएक्शन दैट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज Finkelstein reaction. It is known as Finkelstein reaction. In case of Finkelstein reaction, suppose हमारे पास कोई भी एक हैलाइड है, उसे हम react कर रहे हैं with sodium iodide. The reaction that takes place in presence of acetone, right? And we reflux it when we are going to get an iodide product. ठीक है, सो इस पे हम जनरली आयोडो प्रोडक्ट्स ही बनाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमको यहाँ पे ब्रोमो लेना है और ब्रोमो को आयोडो के साथ हमको सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम यहाँ पे इजीली ब्रोमो कंपाउंड को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे and we reflux it to get ठीक है. अब जो फ्लोरीन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम इस वाले रिएक्शन से नहीं कर सकते, तो फ्लोरीनेशन करने के लिए हम दूसरी एक रिएक्शन यूज करते हैं जिसमें हम रिएजेंट यूज कर लेंगे. है ये भी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, बट ये वाली रिएक्शन स्पेशली फॉर फ्लोरीनेशन है. ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव CH3 CH2 Cl और हम इसे रिएक्ट करते हैं से विद Hg2F2. ओके, सो वी आर गोइंग टू गेट द फ्लोरो प्रोडक्ट. Now this reaction जो फ्लोरीनेशन हम कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन का नाम भी बदल जाता है. The reaction that is known as Schwarz reaction. The reaction is known as Schwarz reaction. Instead of mercury chloride, there are other reagents also which we can use. For example, हम इस वाली रिएक्शन में सिल्वर क्लोराइड यूज कर सकते हैं. Hg2F मतलब अगर फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं तो उसमें Hg2F2 की जगह अगर AgF है तो इट मींस इट इज Schwarz रिएक्शन होगी. ठीक है, सो AgF भी यूज कर सकते हैं. कोबाल्ट क्लोराइड COF3, कोबाल्ट क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं. एंटीमनी ट्राइक्लोराइड भी यूज कर सकते हैं SbF3. So these are the reagents which can be used for this reaction. Now अगर हमारे पास organic halide जो इधर है, this is a monohalogen derivative, अगर इसकी जगह हमारे पास dihalogen derivative होगी, तो in that case कौन सा reagent हमको use करना है? जैसे for example we have CH3 C Cl Cl. So this is a dihalogen derivative. In this case जो reagent हम यूज करेंगे that is SbF3, antimony trichloride. So दोनों क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं. ठीक है, so ये तीन रिएक्शंस हो गए, ये तीनों NCERT में दिए हुए हैं, बट एक रिएक्शन जो हम अभी करेंगे that is not given in NCERT, that is again a name reaction. It is known as Borodin Hunziker reaction. बोरोडीन हंसटिकर रिएक्शन. इन दिस केस हम ब्रोमिनेशन करते हैं किसी भी एक सिल्वर सॉल्ट की. जैसे हमने सिल्वर एसिटेट ले लिया, उसकी हमने ब्रोमिनेशन करनी है
सो ब्रोमिनेशन में हमारे पास आ जाता है CH3Br प्लस AgBr प्लस CO2, राइट। अब यहां पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसके पास 2 कार्बन एटम्स हैं, but the product which is formed it has only 1 carbon atom. So such reactions in which the number of carbon atoms decreases in the main product, ऐसी reactions को हम step down reactions बुलाते हैं, ठीक है। So this reaction is a step down reaction जिसमें the number of carbon atoms they are greater in case of reactants and lesser in case of products. ओके अब इधर हम ब्रोमीन की जगह क्लोरीन भी यूज कर सकते थे टू गेट अ फ्लोरो प्रोडक्ट, पर जब क्लोरीनेशन करते हैं तो उसकी यील्ड बहुत पुअर होती है, इसलिए जनरली दिस रिएक्शन इज डन बाय टेकिंग ब्रोमीन। और जो ट्रेंड ऑफ द रिएक्शन रहता है, फॉर्मेशन जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ट्रेंड ऑफ द रिएक्शन इज 1 डिग्री सबसे इजीली फॉर्म होगा, फिर उसके बाद 2 डिग्री और फिर उसके बाद 3 डिग्री। 1 डिग्री सबसे पहले फॉलो होता है, सबसे ज्यादा फॉलो होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। सो दिस इज द एंटायर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है, समझ में आ गया। सो वी गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एलीन्स। क्या होते हैं हेलो एलीन्स? इन व्हिच द halogen is attached to the benzene ring, ठीक है, that is what halogenes are. So let's see किस तरह से हम लोग prepare करते हैं. The first method, that is direct halogenation of aromatic ring. Such reactions जिसमें direct halogenation of aromatic ring is taking place, they are known as electrophilic substitution reactions. Electrophilic substitution reactions. In this case, we directly react the benzene with the halogen in presence of a halogen carrier. So this is the product which we are going to get over here. ओके अब यहां पे एक ये निकल जाएगा HX. X जो यहाँ पे है, दिस कैन बी ओनली क्लोरीन और ब्रोमीन। जब हम ये वाली रिएक्शन करते हैं तो इन दिस केस X कैन ओनली बी क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। अब जो हेलोजन कैरियर हम इसमें यूज करेंगे, वी कैन यूज FeCl3, we can also use AlCl3. फंक्शन हेलोजन कैरियर का क्या होता है, ये हेलोजन कैरियर्स इलेक्ट्रोफाइल बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे H2 है, लेट्स से दैट वी आर टेकिंग ओवर हियर, द रिएक्शन इज वी आर रिएक्टिंग बेंजीन विद फ्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, and the product that is going to be chlorobenzene. Okay, electrophile जो है वो क्या है? Electrophile is positively charged species. Electrophile is positively charged species. So what is this AlCl3 going to do? This AlCl3 reacts with chlorine, Cl2 के साथ react करता है to give us AlCl4 negative plus Cl positive. अब ये जो Cl positive यहाँ पे है, this is going to behave as an electrophile, ठीक है। अब ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बना, ये इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा, this is the benzene ring, this is the electrophile, ठीक है। अब ये जब रिएक्ट करता है तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, सो जब रिएक्शन होगी
H और Cl, ये वाला बॉन्ड एज इट इज रह जाता है, ये वाला बॉन्ड एज इट इज रह जाता है। अब यहाँ पे भी ये क्लोरीन ने एडिशन करा है, तो अगर एडिशन करता है अराउंड द डबल बॉन्ड तो इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? दिस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू शो रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ? डिलोकलाइजेशन ऑफ द बाइलेक्ट्रॉन क्लाउड इज गोइंग टू टेक प्लेस। ये यहां चला जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्ट होता है। ओके, सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? द नेक्स्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, सिमिलरली this is going to be directed here, positive charge in opposite direction. So what do we get over here? Positive charge over here. ठीक है, so ये जो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो delocalize कर रहा है inside, and the addition of chlorine or the substitution of the chlorine can be done. ठीक है, अब क्या होगा कि ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव होना है, ये हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करेगा AlCl4 के साथ, so we will get ठीक है, ये AlCl4 के साथ रिएक्ट करता है और इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा इससे, एंड फाइनली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू गेट दिस। राइट, सो हाइड्रोजन कैरियर हमें एज इट इज वापस मिल गया। क्लियर हो गया? ये जो फर्स्ट स्टेप यहां पे हम देख रहे हैं, दिस इज द स्लो स्टेप, therefore this is the rate determining step of the reaction, right? so ये हम लोग ब्रोमिनेशन भी इस वाली रिएक्शन से कर सकते हैं और क्लोरीनेशन भी इस वाली रिएक्शन से कर सकते हैं। नाउ इन केस यहाँ पे अगर हमारे पास कोई, जैसे यहाँ पे तो डायरेक्ट हेलोजनेशन हमने कर दी, अगर सपोज यहाँ पे कोई हमारे पास ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे सपोज हमारे पास है टोलीन, मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट। ओके, अब जो मिथाइल ग्रुप होता है दैट इज गोइंग टू बी ऑर्थो एंड पैरा। ओके, सो जब हम इसकी क्लोरीनेशन करेंगे तो क्या होगा? वी विल गेट अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो प्लस पैरा, राइट? और हाइड्रोजन कैरियर हमने यहाँ पे वही लेना है, वी कैन टेक ईदर, वी कैन टेक FeCl3 और वी कैन टेक AlCl3। सो जब भी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो वो इनकमिंग हाइड्रोजन को डायरेक्ट करेंगे टुवर्ड्स ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। क्लियर है? ओके, फिर अगर हमको आयोडीनेशन करनी है इसकी, सो सिमिलरली हम आयोडीनेशन कर सकते हैं by reacting with iodine HI. Now this reaction is reversible. तो रिवर्सिबल का मतलब ये HI इसके साथ रिएक्ट करके हमें वापस रिएक्टेंट दे देता है। तो now our focus is going to be what? To remove this HI as soon as this is formed. HI को हम कैसे रिमूव करते हैं? It can be removed by reacting it with iodic acid. It can be removed by reacting it with iodic acid. Then we are going to get CH2. ठीक है?
करना जरूरी है। क्लियर हो गया? ओके, अब अगर यही रिएक्शन है हमारा और हमारी इसमें चेन बड़ी है, लेट्स से कि हमारे पास CH2 साइड चेन इसमें लगी है, इथाइल बेंजीन, और इस रिएक्शन को हम कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग द रिएजेंट ओवर हियर, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ H2। तो अगर क्लोरीन को हम इन प्रेजेंस ऑफ H2 करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, सो प्रोडक्ट जो इसमें आ जाएगा वो अलग आ जाता है। साइड चेन सब्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू टेक प्लेस ओवर हियर। ये वाला फ्लोरीन जो है वो डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है? करेक्ट है रिएक्शन? ओके, छोटे से शुरू करो। CH3 ले रहे हैं हम, राइट? ये दे रहे हैं। Now over here what we have done wrong is कि ये जो क्लोरीन है it will not attack at this carbon atom, it is going to attack at this carbon atom. So product जो इसमें बनेगा Cl will be attached to this carbon atom, CnCl CH2। IUPAC नेम बताओ जरा, इसका IUPAC नेम क्या होगा? नंबरिंग हम यहां से शुरू करेंगे, 1 2 1 and 2, so 2 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन, 2 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन, और इसका 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। ठीक है, सो आप देख सकते हो इन दोनों रिएक्शंस में, देखने में हमें सेम रिएक्शंस लग रही है। ये यहाँ पे हम बेंजीन को, सॉरी यहाँ पे हम टॉलीन को रिएक्ट कर रहे हैं Cl2 के साथ, और रिएजेंट जो हमने लिया है वो AlCl3 लिया है। तो जब हम हेलोजन कैरियर लेते हैं तो ऑर्थो और पैरा पे क्लोरीन डायरेक्ट होते हैं, पर अगर यही रिएक्टेंट ले रहे हैं पर हम रिएजेंट्स जो है वो चेंज कर दे रहे हैं, वी आर यूजिंग लाइट। सो जब लाइट लेंगे तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा और साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होगी। ठीक है, सो व्हेन वी आर टेकिंग अ हेलोजन कैरियर तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, और अगर हम लाइट ले रहे हैं तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी। So in both the cases, the products they are going to be different. From these two reactions, what do we come to know? इन दोनों रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है? ये पता चल रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मैकेनिज्म्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो रिएक्शन को डिफरेंट डायरेक्शन में डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, so this is the first method, direct halogenation of the aromatic ring, electrophilic substitution reactions. Second जो method है, that is from diazonium salts. Second is from diazonium salts. Diazonium salts क्या होते हैं? Diazonium salts are, अगर जिसमें एक N ट्रिपल बॉन्ड N का X N2 पॉजिटिव और Cl, बेसिकली हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज अ बेंजीन डाइसोनियम हैलाइड। प्रिपरेशन हम इसकी कैसे करते हैं? दे आर प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग sodium nitrite with HCl to give NaCl plus nitrous acid HNO2,
और फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में एनिलीन को हम रिएक्ट करते हैं विद नाइट्रस एसिड in presence of HCl, when we will get benzene diazonium chloride. This reaction is known as diazotization reaction. ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बुला रहे हैं? The reaction is known as diazotization reaction. Okay, अब ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमने बनाया है, इससे हम फर्दर एराइल हैलाइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हमने N2X ले लिया और इसे हम रिएक्ट कर रहे हैं विद Cu2X2, we will get halide. Aryl halide हमें मिल जाता है, ठीक है? And nitrogen that is eliminated. Over here also X that is going to be chlorine or bromine. Okay, अब जब हम इसे रिएक्ट कर रहे हैं to form a chloro compound, we are going to get chlorobenzene, right? और अगर हम यहां पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को Cu2 Br2 के साथ रिएक्ट करें in presence of HBr, we are going to get bromobenzene. तो इन दोनों रिएक्शन से क्या पता चल रहा है कि जो हेलोजन बेंजीन के ऊपर अटैक कर रहा है, दैट इज द हेलोजन फ्रॉम द सॉल्ट एंड नॉट फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. ठीक है, ये तो अदरवाइज यहाँ पे भी क्लोरोबेंजीन ही बनना चाहिए था ना, पर यहाँ पे नहीं बन रहा. ये जो दोनों रिएक्शंस हमने करी, these reactions they are known as Sand-Mears reactions. इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा Sand-Mear reaction. अब अगर हम रिएजेंट चेंज कर दें तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो बनेगी गेटरमैन. हमने सिर्फ रिएजेंट इसमें चेंज करना है. The reaction over here that is taking place in presence of copper and HCl और प्रोडक्ट सेम है. Chlorobenzene and nitrogen, right? So Sand-Mear reaction में हम सॉल्ट यूज कर रहे हैं कॉपर का, और गेटरमैन रिएक्शन में हम सिर्फ कॉपर ही यूज कर रहे हैं. सो वी कैन से दैट गेटरमैन रिएक्शन जो है दैट इज अ मॉडिफाइड रिएक्शन ऑफ Sand-Mear, राइट? सो अगर हम यहाँ पे HCl की जगह HBr यूज करेंगे तो हमारे पास ब्रोमो डेरिवेटिव आ जाएगा. ठीक है, we are going to get a bromo derivative. आइडो बनाने के लिए हम ये वाली रिएक्शन यूज नहीं करते. आइडो बनाने के लिए हम बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को
आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, when we get iodobenzene plus N2 plus KCl, आयोडोबेंजीन, ठीक है। और फ्लोरोअरीन को प्रिपेयर करने के लिए हम फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, दिस इज फ्लोरोबोरिक acid. Fluoroboric acid, when we get an intermediate which dissociates into fluorobenzene plus BF3. इस रिएक्शन को बाल्स-शीमैन रिएक्शन बुलाते हैं। The reaction is known as बाल्स-शीमैन रिएक्शन, ठीक है। हेलोअरीन्स को हम फिनोल से प्रिपेयर नहीं कर सकते, हेलोअरीन्स को हम डायरेक्टली फिनोल से प्रिपेयर नहीं कर सकते, हम आगे करेंगे उसमें, बिकॉज इन दैट केस अगर फिनोल से हम प्रिपेयर करेंगे तो द रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फिनोल जो है वो रेजोनेंटली स्टेबलाइज्ड है, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच OH ग्रुप को एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए क्लोरीन को हम डायरेक्टली अटैच नहीं कर सकते बाय रिमूविंग द OH। इन ऑल दीज केसेस आप देख रहे हो कि हम लोग एक रिएजेंट यूज कर रहे हैं, लेकिन भी हमने टोटल सब्स्टिट्यूशन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट नहीं देखी है, राइट। सो यहाँ पे भी जब हम कर रहे हैं तो दो रिएक्शंस हमने करी। फर्स्ट रिएक्शन हमने किससे करी थी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। अब यहाँ पे भी डाइसोडियम क्लोराइड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। सो व्हाट आर हाउ मेनी नेम रिएक्शंस वी हैव डन इन दिस सेक्शन? एक हमने सैंडमेयर्स कर ली, एक हमने लेटरमैन कर ली, एक हमने बाल्स-शीमैन कर ली। ओके, सो लेट्स जस्ट रिवाइज ऑल द नेम रिएक्शंस ऑफ दिस सेक्शन जो हमने करी है, सो दैट इसका एक नोट बना के आपने अपने पास हर एक सेक्शन का रखना है। तो जब आप रिवाइज करोगे तो एक बार इसे पेजेस फ्लिप करते रहोगे, ठीक है। बेसिकली इसका एक चार्ट बनाना चाहिए आपको सारे नेम रिएक्शंस। लेट्स सी नेम रिएक्शंस कौन कौन सी हमने इस चैप्टर इस वाले सेक्शन में करी है। फर्स्ट फिंकलस्टीन, सेकेंड स्वार्ट्ज, थर्ड बोरोन-हंस्टिकर, फोर्थ सैंडमेयर, फिफ्थ Letterman, and sixth is Baals-शीमैn. So these are the 6 reactions जो कि हमने methods of preparation of haloalkanes में करी है। So let's see Finkelstein reaction कौन सी थी? Finkelstein reaction में halogen exchange reaction. So we have CH3 C2H6 plus NaI in presence of acetone, we are going to get CH3 CH2I. In this case X can be chlorine or bromine, ठीक है। फिर स्वार्ट्ज रिएक्शन आ गई, CH3 CH2X plus Hg2F2,
to give us a फ्लोरोडेरिवेटिव, ठीक है। फिर बोरोन हंस्टिकर रिएक्शन में ब्रोमिनेशन कर रहे हैं और हमने बोला कि क्लोरीनेशन जो है वो बहुत पुअर यील्ड करती है एंड दिस इज अ स्टेप डाउन रिएक्शन। एजीडीआर, ठीक है। सैंडवेयर रिएक्शन में बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड with CO2H2 to give us the main product as this, ठीक है। यहाँ पे भी X जो है that can be only chlorine or bromine। गेटरमैन रिएक्शन में थोड़ा और यील्ड इंप्रूव कर देते हैं। Again, X over here can be only chlorine or bromine। और बाथ-स्टीमर रिएक्शन में फ्लोरिनेटेड प्रोडक्ट आता है। ठीक है। So these are the reactions of this section।